سننے والوں کے اندر تبدیلی آنا چاہیے. اور میں تو دیکھ رہا ہوں بہت ساری تبدیلی آ گئی. میرے بچپن میں دیکھتا تھا کہ اہل سنت و جماعت کے مسلمان بڑی عقیدت سے بی بی کا علم دیکھنے جاتے تھے اور استقبال کرتے تھے. اب جو بدتمیز ہیں تو ہر جماعت میں ہے نا بھائی، لیکن کچھ ایسے سنجیدہ فکر کہتے کہ بی بی علم، بی بی کا علم، اور ہم خود آگے یہاں پر استقبال کریں اپنے بڑوں کے ساتھ. بی بی کے علم کا استقبال کرتے تھے، عقیدت سے کھڑے رہتے تھے. مگر جب سے یہ خارجی ذہن زکوٰۃ و فطرے کی ٹیم پیدا ہوئی، ان لوگوں نے دیکھا کہ اہل بیت سے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل بیت کے علم سے، ان کی نشانیوں سے دور کر دو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ علم کو شیعوں کی جاگیر بنا دی. شیعہ کرتے وہ کیا بات ہے شیعہ کرتے کہ شیعہ امام حسن امام حسین پہ شیعوں کی جاگیر ہے. خدا کی قسم اگر وہ شیعہ حضرات امام حسن امام حسین کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم سنی بھی انہیں کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں. اگر شیعہ حضرات کے بعد امام حسن امام حسین ایمان کا جز ہے تو اہل سنت والجماعت کے بعد اہل ایمان ہے. ان کو مانا تو مومن، نہیں مانا تو کافر. یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. دلی کے ایک مشاعرے میں کنور سنگھ بیدی کیا نام تھا؟ کنور سنگھ بیدی سرداری شاعر ہیں. دلی کے ایک مشاعرے میں سارے مسلمانوں کو چپ کر دیا انہوں. ایک نعتیہ شعر پڑھے، وہ بولے کہ عشق ہو جائے کسی سے تو کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف محمد کا صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. جو مسلمان ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہوئے نام محمد کے، ہم ہی ہے. ارے تم بھی نہیں ہے، ہم کو بھی محمد عربی سے محبت ہے. تو کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے امام حسن امام حسین. اب ایک بات بتاؤ پریکٹیکلی طور پر، اب کسی مولوی مفتی سے جا کے پوچھو آپ حضرت بی بی کا عالم دیکھنا چاہتے نہیں. کیوں؟ شیعوں کا ہے. ارے بھائی شیعہ سنی کہاں سے آ گئے؟ بازو جھنڈا ہے نام اس پر تو، اردو میں جھنڈا، عربی میں علم. سبحان اللہ سبحان اللہ. دے رہا ہوں یہ علم ہے. اور یہ علم اس لیے کہ میرے پیر نے فرمایا، غوث الاعظم کا ارشاد ہے اور عاشقان نے دکن کے مسلمانوں کا، سنیوں کا ہے، ہمارے حضرت بڑا کام کرے سنیت کا. اب بتاؤ ایک جگہ جھنڈا ہے کیا؟ میں تو پڑھ کے آیا ہوں بریلی میں، کہیں شمالی ہند میں غوث اعظم کا کوئی جھنڈا ہے تو بتاؤ. ارے سنیت ہم کو کیا بتاتے ہو؟ سنیت دیکھنا ہو تو سرزمین دکن چلے آؤ. میرے پیر غوث الاعظم نے فرمایا تھا کہ انا الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی راس الجبالی. میرا نام محی الدین ہے اور میں جیلان کا رہنے والا ہوں. میرے نام کے علم جھنڈے تم کو جھاڑوں پر اور پہاڑوں پہ نظر آئیں گے. تو غوث اعظم نے بغداد میں بولا تھا، علماء نے غوث اعظم نے پہاڑوں سے لے کے جھاڑوں پہ جھنڈا لگوا دیا. میں آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں بھائی، اگر یہ جھنڈا غوث اعظم کا جلوس کا جا رہا، کوئی مفتی صاحب سے جا کے پوچھئے کہ غوث پاک کا جو علم جاتا ہے اس میں شریک ہونا چاہیے، تو مفتی صاحب بولتے ہاں ضرور جانا چاہیے، بڑے پیر کا ہے، نشان مبارک ہے، علم ہے.
गाय के लिए बोलते 11वीं का खाना मिलता ना। अगर ये बोले बड़े पीर के झंडे की जियारत नहीं करना चाहिए तो इनको 11वीं में बुलाना छोड़ देते लोग। तो पेट की खातिर बोलते जरूर जाना चाहिए। मेरे दोस्तों ये बताओ कि अगर अलम की जियारत करना, अलम बिठाना, अलम लेके चलना, अभी काली कमान से जो गौसे पाक का निशान निकलता है हजारों आदमी शरीक होते हैं। अमीर पेट पे निशान निकल रहा, अंबर पेट पे निशान निकल रहा, गौसे पाक का अलम, हजारों आदमी शरीक है, लंगर तकसीम हो रहा है। तो ये अलम में जाते नहीं जाते गौसे पाक के? अच्छा घरों पे चढ़ाते नहीं चढ़ाते? नादानो, गौसे आजम तो पोतरे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की इजाजत देने वाले दादी के अलम पे रोकता क्यों है? हंगामा होगा, उसके लिए आप तैयार रहें। मैं सिर्फ सरकार इमाम हुसैन का आलम है, दादा है मेरे गौस के। सरकार इमाम हसन का आलम है, दादा है मेरे गौस के। सैयदा फातिमा दादी है मेरे पीर की। मौला मुश्किल कुशा दादा है मेरे पीराने पीर के। तो मेरे दोस्तों जो पोतरों का अलम लेके हम लगा लेते हैं तो दादा के अलम पे क्यों गुफ्तगू हो रही है? लेकिन अगर फर्ज करो कुछ लोगों के खुराफात उसमें शामिल हो गए, बीबी के अलम के साथ हर आदमी अपने अकीदे के मुताबिक चलता है। अगर शिया कम्युनिटी अपने अकीदे के मुताबिक चल रही है तो ये उनका इख्तियार है, वो अपने इश्क व मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं जिस अंदाज से कर रहे हैं। अलग बात है कि आपका अकीदा उससे टैली करता नहीं करता ये मतलब नहीं है। जाने वाला तो इश्क व मोहब्बत पे वो भी जा रहा है, वो अपने अंदाज में बीबी के अलम के साथ जाएं और सैयदा फातिमा के गुलाम अकीदत और मोहब्बत के साथ अपने अंदाज से जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बीबी का अलम खुदा की कसम हैदराबाद की शान थी। मुझे याद है कि हमारे बचपने में बीबी का आलम निकलता था, अलावे से चादर घाट तक चलने की जगह नहीं रहती थी। लेकिन जब से ये ज़कात फित्रे की टीम पैदा हुई, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, तो ये एक साजिश है, एजेंडा है। अहले सुन्नत वल जमात को बड़ा नुकसान पहुंचा। रात दिन हमारी सफों में कुछ खारिजी ऐसे घुसे जो रात दिन सिर्फ शियों के खिलाफ बोलते रहे। आपका मजहब क्या है? शियों के खिलाफ करना, शियों के खिलाफ करना। उनसे जाकर पूछो भाई आप क्या कर रहे हैं, तो सुन्नियों के खिलाफ करना। तो दोनों तो वही कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, किसी के खिलाफ चलना कोई मजहब नहीं हो सकता, बल्कि अगर किसी की कोई अच्छी चीज है इसको मोहब्बत में उसको अपना लेना, यही सही तरीका हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी से उधार लेने की जरूरत है। हमारे बुजुर्गों ने अलम मुबारक का एहतराम किया, निस्बतों का एहतराम है। मैं नाम लग गया, सर झुक गया अकीदत से। ये इश्क को मोहब्बत सिखाता है कि नाम का एहतराम होगा। और फुक़हा किराम ने लिखा है ये चिल्ले जो बनते हैं ना, ये चिल्ले, ये महबूब सुबानी का चिल्ला, ये महबूब सुबानी का चिल्ला, फुक़हा किराम से जाके पूछिए मुफ्ती साहब से निजामिया के, ये चिल्ला तोड़ना चाहिए? तो मुफ्ती साहब यही जवाब देंगे कि जहां महबूब सुबानी का चिल्ला बन गया इसको तोड़ने की शरन इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो हो या ना हो मगर नामे गौसे पाक लग चुका है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुहर्रम शरीफ की आमद के साथ बहुत सारे खारिजी नासिबी ज़हनियत रखने वाले नए नए सवालात उठाने की कोशिश करते हैं, जिसमें अशरा मुहर्रम की ताज़ीम और फिर इस अशरा में
किसी किस्म का कोई नया काम नहीं करना या कोई खुशी का काम नहीं करना, जो हमारा अपना अहले सुन्नत वल जमात का पुराना बरसबर सदियों से जो तरीक़ा चलता आ रहा है। लेकिन ये नासिबी खारिजी ज़हनियत के जितने भी लोग हैं, इन लोग नए नए अंदाज़ में इन सवालात को उठाते हैं और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नए नए फितने बर्पा करने की कोशिश करते हैं। इसी की एक कड़ी जो मुसलसिल पहली मुहर्रम से बल्कि मुहर्रम से पहले मुझसे मुसलसिल सवालात किए जा रहे हैं और उसमें काफ़ी इसरार भी हो रहा है कि आप इसका जवाब दीजिए। यही नहीं, खारिजी नासिबी ज़हनियत रखने वाले ही नहीं बल्कि कुछ खुश अक़ीदा लोगों का तरफ से भी ये बात आई कि इसमें आप कुछ अगर बोले तो बेहतर होगा। जो अहम जो मुद्दा फ़िल वक्त बनाने की खारिजी नासिबियों की जो कोशिश है वो है अलम शरीफ की ज़ियारत। उमूमन देखने में ये आया है कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि बीबी का अलम जो डबीलपुरे में रहता बैठता है, वो अलम के मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालात मेरे सामने आए और लोगों ने मुझसे कहा कि आप इसकी वजाहत अगर दें तो बहुत सारे लोगों के शुकूक दूर हो जाएंगे। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि अलम का कोई शरई जवाज़ अगर आप ढूंढेंगे तो वो मुमकिन नहीं है, कोई शरई जवाज़ मिलेगा नहीं। पहले आप ये समझ लें कि अलम के माने क्या है। अरबी में अलम कहते हैं निशान और उर्दू में हम कहते हैं झंडा। इस बात को आप जहन नशी कर लें आप कि अरबी में निशान को कहते हैं, जैसे कि अक्सर आप देखते हैं कि पुराने दौर में जब कोई काफिला या कोई फौजी दस्ता जाया करता था तो उसका एक निशान हुआ करता था, जो सुमने आगे फौज के आगे घोड़े पर एक फौजी या जो भी काफिला है उसका जिम्मेदार एक निशान पकड़कर आगे जाता था, एक निशानी, तो उसको कहा जाता है अलम। उर्दू ज़बान में अगर आप उसको समझेंगे तो वो होगा झंडा। देखिए, अलम मुबारक का जहाँ तक के सवाल है बीबी के अलम का, तो हमने बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों को वहाँ पर जाते हुए देखा है और वहाँ की ज़ियारत करते हुए देखा है। जिस तरीक़े से हम सरकार पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का झंडा अपने घरों पर लगाते हैं, उसी तरीक़े से बीबी का अलम भी है। ये बात को आप क्लियर कर लें अपने नज़दीक। रहा सवाल कि वो जो अंदाज में अलम बिठाए जाते हैं कि सवारी आ रही है, वजद आ रहा है, कैफियत आ रही है, नाचम कूदी की जा रही है, ये किस्म की हरकत बेहुदा हरकत हैं। इसकी इजाज़त ख़तई तौर पर नहीं दी जा सकती। जिस तरीक़े से हमारे मोहल्लों में, हमारी नुक्कड़ों पर आप देखते हैं सरकार पीर गौसे आदम दस्तगीर का निशान मुबारक लगाया जाता है, झंडा लगाया जाता है, सरकार पीर का नाम का अलम लगाया जाता है और फिर वो अलम आने से पहले जो है बाजे गाजे के साथ जो है अलम आता है और उस पर सेहरा बांधा जाता है, घोड़े पर रखा जाता है और फिर सरकार पीर की नियाज की जाती है और खाना खिलाया जाता है। वैसे ही तौर पर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो या मालिकिनी दो जहां हो या कोई और अहले बैत अतार के नाम से अगर कोई अलम मंसूब होता है और वो सिर्फ अलम के हद तक ही रहता है, तो उसमें कोई भी जो है यानी खबाहत नहीं है कि आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर ज़ियारत करें। अब यूँ अगर आप किसी खारिजी मौलवी से पूछेंगे कि क्या भाई अलम की ज़ियारत कर सकते हैं, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, ख़तई नहीं कर सकेंगे आप, इसमें शरीयत की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरीक़े से सरकार पीर का झंडा है, सरकार गौसे आदम दस्तगीर का झंडा है, वैसे ही इमाम हुसैन के नाम का झंडा है जिसको हम अलम के नाम से जानते हैं। इस मामले में खतीब दक्कन हज़रतुल अल्लामा हज़रत सैयद काज़िम पाशा साहब क़िबला रहमुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने भी काफ़ी मुदल्लल तकरीर की है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस बात की कि आप लोग वो तकरीर सुने ताकि अलम के मुताल्लिक़ जो गलत फहमी पैदा की जा रही है वो यकीनन आपके पास से वो गलत फहमी दूर होगी। देखिए, ये खारिजी नासिबियों का एक तरीक़ा रहा कि अहले बैत अतार के दामन से हमको दूर करने के लिए हर वो चीज़ जो उनसे मंसूब है, जो अहले बैत अतार से जो मंसूब है,
उससे हमें दूर करने की कोशिश की जा रही है। बहस काफ़ी तवील है, लेकिन मैं बहुत ही मोटे अल्फाज में आपको यह समझा रहा हूं कि झंडा और अलम दोनों के एक ही माने हैं। उर्दू में झंडा कहते हैं, अरबी में अलम कहते हैं। फिर एक बार मैं वजाहत के साथ ये कह रहा हूं कि वो अलम जिस अंदाज से कुछ ना जाहिल लोग जो करते हैं, लेके नाचते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उसको उछाल कूद करते हैं, वो ख़तई गलत है। उस बात की ख़तई तौर पे इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई करता है तो वो जहालत है, बिल्कुल जहालत है, हम उसकी तायद नहीं करेंगे। बीबी के अलम के मुताल्लिक़ जो बात कही गई उसमें बहुत सारे तबरुकात हैं, उसमें मालिकनी दो जहां के तबरुकात हैं। उस नीयत से हम जाते हैं और ज़ियारत करते हैं अपने अक़ीदे के साथ। हमारे अक़ीदे में कोई तब्दीली नहीं आएगी इंशाअल्लाह, सुबह क़याम आखिरी दम तक नहीं आएगी। अपने अक़ीदे के साथ हम जाकर के ज़ियारत करते हैं, जैसे कि माजी में बड़े बड़े बुजुर्गान दीन भी गए, अपने अक़ीदे के साथ गए और बीबी के अलम की ज़ियारत किए। अब ये खारिज नासिबी ज़हनियत रखने वाले अहले बैत अतहार से दूर करने के लिए उनसे जो चीज़ मंसूब है उससे भी हमको दूर करते हुए अहले बैत अतहार से हमको दूर किया जा रहा है। ये मेरी अपनी तरफ से एक छोटी सी वजाहत है, आप लोग इसको जो है कबूल करें। और हज़रत काज़िम पाहे साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान का भी आप इस उन्वान पर जो खिताब है उसको ज़रूर सुनें।